Hello, good morning student. Today we are going to learn here about the metallurgy. In our previous class, we have learned some technical methods for using the ob- or obtaining the concentrate ore. Means how we have obtained the concentrate ore by using the different technical methods we have learned in our previous class. Actually, here we will learn the basic principle of metallurgy. Basic principle of metallurgy. So, in this chapter, we will learn here the how pure metal is obtained from the ores or the minerals. Means ore or minerals, those are obtained inside the crust. Yes, inside the earth. ठीक है, we will get it with a lot of impurities and we have obtaining these ores and minerals, we have process on it and we have obtained the pure metal here. But for obtaining the pure metal, firstly we have get the concentrate ore and we have process it. Different stage wise process we have carried here. So we have learned in a metallurgy. In previous class we have learned there two methods, technical methods we have learned there. Do you remember it? चलिए बेटा, कौन ये दो मेथड्स के नाम बता सकता है जो कि हमने पहले क्लास में लर्न किए वाले हैं? चलिए बेटा प्रयास कीजिए. देखिए फर्स्ट मेथड दैट इज अ सेपरेशन बेस्ड ऑन ग्रेविटेशन. सेपरेशन बेस्ड ऑन ग्रेविटेशन. चलिए तो एक्चुअली यहाँ पे हमने जो बेसिक प्रिंसिपल यहाँ पे यूज किया है दैट इज ग्रेविटेशन. अब इस बिलोंगिंग टू दैट ग्रेविटेशन बेसिक प्रिंसिपल्स we have use here the one technical method and that name is Wilfly table methods. Wilfly table methods. We will learn it. I have given their diagrammatic explanation also in previous class. Again we will learn the second method. चलिए हमने सेकेंड मेथड को लर्न किया था. वो वाली मेथड देखिए बेटा, दैट इज अ हाइड्रोलिक सेपरेशन मेथड. Which method we have learned there? Hydraulic separation method. Actually, here basic principle is a hydraulic separation. Hydraulic that is water. Water को लेकर है ना बेटा. हमने यहाँ पे जो टेक्निकल मेथड लर्न की वाली थी है ना, तो वो that is बना हुआ hydraulic separation. Hydraulic separation. Actually, this hydraulic separation method is based on the working of mill. Working of mill. चलिए, after then we have go to remaining further stages. We have learned here for obtaining the concentrate ore here. So let us go start for the another different stages. Here we have learned the next separation method. Yes, it is a depends upon the magnetic effect. Magnetic effect के ऊपर ये डिपेंड है. एक्चुअली देखिए बेटा, हमने पहले क्लास में कुछ सब्सटेंस को लेकर हमने लर्न किया था प्रॉपर्टी मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक. एक्चुअली देखिए बेटा, कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं कि वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ सब्सटेंस यहाँ पे नॉन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट करते हैं. उसी को लेकर अभी देखिए बेटा ये प्रिंसिपल है. अभी इस प्रिंसिपल को यूज करते हुए हमने यहाँ पे टेक्निकल मेथड को फॉलो करते हुए यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट और क्या करने बेटा, ऑब्टेन करने हैं, प्राप्त करने हैं. तो देखिए ये मेथड हम यहाँ पे लर्न करेंगे. सो फर्स्टली वी हैव एक्सप्लेन द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन हियर. तो देखिए यहाँ पे डायग्राम मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट करने जा रहा हूँ. देखिए बेटा यहाँ पे इस डायग्राम में हमें क्या मिल रहा है बेटा? यस वी हैव learns. We have learns here. I have shown to you diagrammatic representation. Actually this diagram, yes, it is a electromagnetic machine. ये क्या बेटा, यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मशीन है. चलिए तो देखिए इसी टेक्निक के आधार पर
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मशीन। देखिए बेटा, हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, ओर को सेपरेट करने वाले हैं, है ना बेटा। तो इसी को लेकर हमने इस मेथड का नाम क्या है, मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। चलिए बेटा, तो हम थ्योरी लर्न करते हुए इसको एक्सप्लेन करेंगे। जैसे कि देखिए, ये जो मशीन तुम्हें दिखाई दे रहा है ना, ये क्या बेटा, यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मशीन है। एक्चुअली ये जो मशीन दिखाई दे रहा है, इस मशीन में हमें यहाँ पे दो इसके हिस्से होते हैं, दो मेन पार्ट्स होते हैं। देखिए बेटा, दो मेन पार्ट, टू मेजर पार्ट्स होते हैं। एक्चुअली यहाँ पे पहला मेजर पार्ट्स हमें यहाँ पे दिखाई देता है, दैट इज आयरन रोलर। चलिए देखिए बेटा, मैं इस आयरन रोलर को जैसे रेड कलर से यहाँ पे इंडिकेट करने का प्रयास करता हूँ। देखिए बेटा, ये वाला, ये कौन है यहाँ पे, आयरन रोलर, ठीक है, ये पहला रोलर। अब यहाँ पे दूसरा, ये आयरन रोलर, यहाँ पे दूसरा आयरन रोलर। ऐसे दो आयरन रोलर होते हैं, यस, एंड दोज आर प्लेस्ड हॉरिजॉन्टली अपार्ट फ्रॉम विथ ईच अदर। ठीक है बेटा, हॉरिजॉन्टली उसे ऐसे सिचुएट किया होता है। एक्चुअली ये जो रोलर्स होते हैं, इसमें जो पहला रोलर होता है, ये मैग्नेटिक इफेक्ट रिप्रेजेंट करने वाला होता है, और दूसरा यहाँ पे नॉन मैग्नेटिक। ऐसे दो रोलर्स होते हैं, और उसी रोलर को कंटिन्यू, देखिए बेटा, घुमाने के लिए यहाँ पे हम एक दूसरा जो मशीन का पार्ट है, हिस्सा है, इसको हम यूज करते हैं, दैट इज अ कन्वेयर बेल्ट। कन्वेयर बेल्ट, देखिए बेटा, यहाँ पे हमें लर्न करना है एक कन्वेयर बेल्ट। तो कन्वेयर बेल्ट मूविंग कंटिन्यूसली अराउंड देम यानी कि रोलर्स को, ठीक है ना बेटा। तो यहाँ पे हमें लर्न करने के लिए मिलता है। चलिए यहाँ पे अभी सेकंड पॉइंट हम लर्न करेंगे। तो सेकंड पॉइंट में देखिए बेटा, जो रोलर्स यहाँ पे दिखाई देते हैं, इसमें से देखिए बेटा, वन ऑफ द रोलर यहाँ पे कौन है, जैसे कि नॉन मैग्नेटिक। देखिए यहाँ पे एक रोलर नॉन मैग्नेटिक होता है, वाइल दूसरा रोलर क्या होगा बेटा, यहाँ पे जैसे कि वो मैग्नेटिक होगा। चलिए एक्चुअली देखिए बेटा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट हमें लर्न करने के लिए मिलता है। जैसे देखिए बेटा, वन ऑफ द रोलर इज अ नॉन मैग्नेटिक व्हाइल द अदर इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, यस ओके, एंड द कन्वेयर बेल्ट इज मूविंग अराउंड द रोलर, क्योंकि कन्वेयर बेल्ट इज अराउंड द rollers. Actually, it is a separate type of the belt, that is a special constructed belt. It is made up by the leather or brass. ये लेदर से या ब्रास से बनवाया जाता है, कौन, कन्वेयर बेल्ट, जो कि रोलर को अक्सर कैसे करता है बेटा, घुमाते रखता है, कंटिन्यू रोटेट करते रखता है। ठीक है, चलिए देखिए बेटा, इस टेक्निकल मेथड में यहाँ पे देखिए हमें एक स्पेशल कंस्ट्रक्शन अरेंज किया वाला दिखाई देता है। जैसे कि देखिए बेटा, यहाँ पे जो एक इनलेट दिखाई दे रहा है, इनलेट, जैसे देखिए बेटा, और हमें जैसे मिलता है, तो और कहाँ से मिल रहा है, इनसाइड द अर्थ क्रस्ट। ठीक है बेटा, एक्चुअली वो कैसे होता है बेटा, इम्प्योरिटी के साथ गैंग्यूल्स होती है ना, बहुत सारी अशुद्धि उसमें होती है। तो वो और जो होते हैं, जो मिनरल्स होते हैं, उसे हम क्या करना है, पहले सबसे पहले उसे क्रश कर लेना है। क्रश करने के बाद उसके छोटे छोटे पीसेस या पाउडर बनाना है। तो वो जो क्रश होता है या स्मॉल पीसेस ऑफ दी और जो होता है, वो हम क्या करते हैं बेटा, जैसे कि इनलेट होता है, उस इनलेट में से उसे हम छोड़ देते हैं। जैसे देखिए बेटा, जैसे फाइनली दैट इज अ ग्राउंडेड ओर, जैसे कि ग्राइंडेड है ना, हम उसे ग्राइंड करेंगे। ग्राइंड करने के बाद छोटे छोटे उसके पीसेस बनाएंगे, यस, और उसको हम इनलेट में से छोड़ देंगे। और जैसे हम इनलेट में से छोड़ देंगे तो क्या होता है बेटा, वहाँ पे जो कन्वेयर बेल्ट होता है, थोड़ा सा स्प्रेड होता है वो, तो वो कन्वेयर बेल्ट के ऊपर वो और छा जाते हैं, उसके छोटे छोटे पीसेस बिखरते हैं। यस ओके, एंड कन्वेयर बेल्ट यस कैरी द ओर्स यस टूवर्ड्स
कंटिन्यूस रोटेटिंग, एक्चुअली जैसे वो रोटेट करते हुए जाता है। तो देखिए बेटा यहाँ पे ये जो रोलर है यहाँ पे ये पूरा नॉन इफेक्ट बताता है, किसका? मैग्नेट का। इसमें यहाँ पे मैग्नेटिक इफेक्ट नहीं होते हैं। लेकिन जैसे ही यहाँ पे जो ओर के छोटे छोटे पीसेस होते हैं, देखिए बेटा यहाँ पे मैं रेड इंडिकेशन करना चाह रहा हूँ, देखिए ये ऐसा रेड इंडिकेशन, ये छोटे छोटे पीसेस है, दैट इज अ ग्राइंड ओर। तो ये बेल्ट के ऊपर, कन्वेयर बेल्ट के ऊपर से आगे आगे चलते हैं, और जैसे ही आगे आगे चलते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि ये जो दूसरा जो रोलर होता है ये मैग्नेटिक इफेक्ट को रिप्रेजेंट करता है, और जैसे ही मैग्नेटिक इफेक्ट को रिप्रेजेंट करेगा तो यहाँ पे उस ओर में जो कुछ मैग्नेटिक जैसे कि इंग्रेडिएंट्स है या सब्सटेंस होते हैं वो पूरे क्या होंगे बेटा, यहाँ पे ये जो कन्वेयर बेल्ट है लेदर से बना वाला है या ब्रास से बनाया वाला है, तो यहाँ पे वो जो मैग्नेटिक इंग्रेडिएंट्स होंगे या सब्सटेंस होते हैं वो पूरे उसी बेल्ट को क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि यहाँ पे वो मैग्नेटिक बेल्ट जैसे कि मैग्नेटिक बेल्ट की जैसे काम कर रहा है, क्योंकि वो जैसे देखिए बेटा, क्योंकि वो मैग्नेट जैसे कि ब्रास या कौन है वो लेदर है ना, तो लेदर वो किसके कांटेक्ट में आ चुका है, जैसे मैग्नेट के कांटेक्ट में आ चुका है, तो यहाँ पे वो मैग्नेटिक जो प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करेगा टेम्पररी, है ना, टेम्पररी। और एक्चुअली वहाँ पे क्या होगा, वो जो ओर्स होते हैं वहाँ पे चिपके रहेंगे, बेल्ट को ऐसे चिपक के रहेंगे, अट्रैक्ट करते रहेंगे, ठीक है बेटा। लेकिन बेल्ट घूमते रहता है, और जैसे ही बेल्ट घूमते रहता है तो बेल्ट क्या होगा बेटा, नॉन मैग्नेटिक। देखिए बेटा नॉन मैग्नेटिक जो रोलर है जिस उस तरफ वो बेल्ट क्या होगा, फॉरवर्ड होगा या कंटिन्यू प्रोसेस में रोटेट होगा, है ना बेटा। तब क्या होता है बेटा, तो उसके जो मैग्नेटिक इफेक्ट होते हैं वो खत्म होते हैं, और खत्म होने के बाद जैसे जो चिपके वाले जो कुछ मैग्नेटिक सब्सटेंस हो गए वो हम अलग कर पाएंगे, और जो नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं वो एक्चुअली देखिए बेटा ओबियसली दे आर द लाइट इन वेट, है ना, हल्के हो गए, और हल्के होने के कारण इजीली वो सेपरेटेड, ठीक है, हम उसे इजीली सेपरेट कर सकते हैं। तो देखिए इसके लिए हम क्या करते हैं, जो मैग्नेटिक रोलर होता है उसके नज़दीक हम यहाँ पे दो वेसल रख देते हैं। जैसे देखिए बेटा यहाँ पे थ्योरी में पहले हम जो बताया वो हम लर्न करेंगे। जैसे कि देखिए बेटा, द पाउडर्ड ओर इज poured ऑन द कन्वेयर बेल्ट नियर द नॉन मैग्नेटिक रोलर, टू कलेक्टर्स वेसल आर प्लेस्ड बिलो द मैग्नेटिक रोलर। तो देखिए बेटा यहाँ पे कलेक्टर वेसल है, कलेक्टर वेसल यानी कि कलेक्ट करने वाले, इसीलिए उसे कलेक्टर वेसल बोला है, ठीक है। वो कलेक्ट करते हैं। जैसे हमने दो वेसल को रख दिया है, जैसे देखिए बेटा ये पहला वेसल है और ये वाला दूसरा वेसल है। जो पहला वेसल है, जैसे देखिए बेटा जो नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं जो हल्के होते हैं वो क्या होगी बेटा, हवा में ऐसे जैसे हल्के होने के कारण वो सेपरेट हो गए, है ना। जस्ट वो एक्चुअली वो हमें सेपरेट कर सकते हैं उसको, क्योंकि वो हवा में इजीली क्या होते बेटा, स्प्रेड हो गए। और जैसे ही हवा में स्प्रेड होते हैं तो हम इसे जो नॉन मैग्नेटिक वेसल है जैसे कि जो कलेक्टर है वेसल, तो उसमें हम उसको जमा कर सकते हैं, सेपरेटली अलग कर सकते हैं। और जो उसके थोड़े बाजू में देखिए बेटा यहाँ पे दूसरा वेसल है, तो उसमें क्या होता है बेटा, जो कि मैग्नेटिक सब्सटेंस हो गए तो उसी बेल्ट को चिपके हुए रहेंगे वो। लेकिन वो बेल्ट क्या कर रहा है बेटा, अभी मैग्नेटिक रोलर को छोड़ते हुए नॉन मैग्नेटिक बेल्ट की तरफ बढ़ रहा है। तो यहाँ पे जो बेल्ट ए लेदर का या ब्रास का होने के कारण वो क्या कर रहा है बेटा, टेम्पररी मैग्नेटिक इफेक्ट रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। और जैसे ही मैग्नेटिक रोलर से वो दूर जाएगा तो यहाँ पे उसके मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होंगे, नहीं से होंगे। तो एक्चुअली वो जो मैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं हेवियर होते हैं, तो हेवियर होने के कारण झट से मैग्नेटिक इफेक्ट यहाँ से नहीं से होने के कारण वो क्या होगी बेटा, फॉल डाउन होगी, नीचे में आ जाएंगे। और जैसे नीचे आते हैं तो हम उसे सेपरेट करते हैं कलेक्टर में, दैट इज अ मैग्नेटिक कलेक्टर वेसल,
उसमें हम उसे अलगली सेपरेट कर पाएंगे। ठीक है, तो ये जो मिलता है ये यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है बेटा, कॉन्सेंट्रेट ओर मिल रहा है, बल्कि पूरा शुद्ध रूप से और हम यहाँ पे नहीं होता है, जैसे मेटल नहीं प्राप्त कर रहे हैं, हम केवल ओर को कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है बेटा, बाद में फिर इसके ऊपर अलग अलग हमें प्रोसेस अलग अलग स्टेजेस में यहाँ पे कैरी ऑन करनी है। तो देखिए ध्यान दीजिए, वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, लेकिन उसे अंडरस्टैंड करते हुए हमें यहाँ पे लर्न करना है। ठीक है, अभी देखिए इसके बाद ये जो पार्टिकल्स हमें मिल रहे हैं, देखिए ध्यान दीजिए, दो मिल रहे हैं ना पार्टिकल्स, जैसे कि सब्सटेंस बोलते हैं या इंग्रेडिएंट्स बोलेंगे हम इसको, तो मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक। जैसे देखिए बेटा, पार्टिकल्स ऑफ अ नॉन मैग्नेटिक पार्ट इन द ओर आर नॉट अट्रैक्टेड टू द मैग्नेटिक रोलर, therefore they are carried further along the belt fall in the collector vessel placed away from the magnetic roller। चलिए बेटा, तो इस तरह से हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, तो हम इसे अलग अलग सेपरेट कर पा रहे हैं, है ना। और में से हमने यहाँ पे क्या सेपरेट किया बेटा, नॉन मैग्नेटिक इंग्रेडिएंट्स या सब्सटेंस को सेपरेट कर दिया है, और मैग्नेटिक इंग्रेडिएंट्स या सब्सटेंस को हमने सेपरेट कर लिया है। एक्चुअली जो हल्के थे दैट्स अ गैंग्यूज, है ना, जैसे कि सॉइल है ना, सिलिकेट्स है। एक्चुअली ऐसे जो अननेसेसरी है वो क्या होगी बेटा, वो हम उसे अलग कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल्स के वेसल्स में उसे कलेक्ट करते हुए। ठीक है, और जो हमारे काम के जैसे कि कॉन्सेंट्रेट ओर के रूप में हमें जो मिलेगा वो कौन है, यहाँ पे मैग्नेटिक कौन है, इंग्रेडिएंट सब्सटेंस यहाँ पे मिलते हैं, जो कि हम उसे कहाँ पे कलेक्ट कर रहे हैं, जैसे कि मैग्नेटिक जो वेसल है ना बेटा, तो कलेक्टर है उसमें हम उसे सेपरेट कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे क्या मिल रहा है बेटा, ये सेपरेशन मेथड हम यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। इसमें कोई डाउट है? चलिए अभी हम इसको आगे देखेंगे। In this way, the magnetic and non-magnetic ingredients in the ore we can separate it into the different vessel। जैसे कि देखिए बेटा, हमने यहाँ पे जो अलग अलग दो वेसल रखे वाले थे, उसी दो वेसल में हमने क्या किया बेटा, जो ओर में से जो नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस थे या इंग्रेडिएंट्स थे उसे हमने अलग कर लिया, वी हैव गेट सेपरेटेड अगेन। जैसे कि इसमें जो मैग्नेटिक इंग्रेडिएंट्स है या सब्सटेंस है उसे हमने अलग से वेसल में इसको वी हैव गेट सेपरेटेड। एक्चुअली वी हैव सेपरेट द कॉन्सेंट्रेट ओर, यहाँ पे हमने कॉन्सेंट्रेट ओर को सेपरेट कर दिया है। जैसे कि कुछ हल्की हल्की जो गैंग्यू है उसको हमने यहाँ पे क्या कर दिया है, रिमूव किया है ना, बाहर निकाल दिया है एक्चुअली। तो इसी तरह से हम यहाँ पे जो कुछ मैग्नेटिक या नॉन मैग्नेटिक जो इंग्रेडिएंट्स है इनको हम क्या कर सकते हैं बेटा, जैसे ओर में से सेपरेट कर पाते हैं। तो यही जो मेथड है ये हमने मैग्नेटिक नेचर के ऊपर डिपेंड है ना, मैग्नेटिक नेचर के ऊपर डिपेंड है। ऐसे मेथड को यहाँ पे हमने लर्न किया है, लेकिन टेक्निकली वी हैव प्रोसेस इट। तो देखिए बेटा, यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल लर्न करने जाएंगे, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू द एग्जाम व्यू। चलिए बेटा, तो एक यहाँ पे एग्जाम्पल है, जैसे कि कैसेरेट। अभी ये जो कैसेरेट है, तो कैसेरेट क्या है, तो कैसेरेट इज ए टिन ओर है ना। जैसे देखिए बेटा, टिन इज अ प्योर मेटल, लेकिन ये जो टिन हमें मिलता है तो हमें वो ओर से मिलता है, अभी उस ओर का नाम कैसेरेट। तो देखिए बेटा, एग्जाम में हमें पूछा जाएगा, जस्ट गिव द ओर ऑफ टीन, तो यस दैट इज a कैसेरेट इज द ओर ऑफ टीन, ध्यान रखना। चलिए अभी यहाँ पे जैसे ऐसे जो ओर्स होते हैं, ऐसे ओर्स को सेपरेट करने के लिए या कॉन्सेंट्रेट ओर हमें यहाँ पे प्राप्त करने के लिए एक मेथड बहुत ही हमें काम आती है। जैसे देखिए बेटा,
कैसेरेट में क्या होता है, जैसे कैसेरेट में नॉन मैग्नेटिक इंग्रेडिएंट्स होते हैं या सब्सटेंस होते हैं, है ना बेटा। जैसे कि यहाँ पे स्टैनिन ऑक्साइड, स्टैनिन ऑक्साइड। चलिए बेटा, ये जो स्टैनिन ऑक्साइड है तो इसका यहाँ पे मोलिकुलर फॉर्मूला रिप्रेजेंट किया है SnO2, स्टैनिन ऑक्साइड। ये इसमें कौन सी प्रॉपर्टी होती है बेटा, नॉन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है। और इसमें दूसरा भी इंग्रेडिएंट्स समाविष्ट होता है या मिलता है, वो जो होते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नेटिक इंग्रेडिएंट्स होते हैं। तो उसका जो नाम यहाँ पे दैट इज अ फेरस टंगस्टेट, फेरस टंगस्टेट। इसका मोलिकुलर फॉर्मूला यहाँ पे FeWO4, याद रखना है बेटा, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, तो कैसेरेट में से जैसे कैसेरेट हम लेंगे, उसका हम भरड़ बनाएंगे या क्रश, है ना, उसको ग्राइंड करते हुए छोटे छोटे पीसेस या पाउडर के रूप में उसको प्राप्त करेंगे। फिर उसके ऊपर हम ये जो मैग्नेटिक प्रोसेस है ना, टेक्निकल मेथड, ये फॉलो करेंगे, है ना। और इसी तरह से यहाँ पे हमें मैग्नेटिक इंग्रेडिएंट्स एंड नॉन मैग्नेटिक इंग्रेडिएंट्स को सेपरेट करेंगे अलग अलग वेसल में, है ना। देखिए बेटा, ऊपर वाली जो डायग्राम, इसको सही ढंग से लर्न करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो उस ओर में दो इंग्रेडिएंट्स मिल रहे, एक जैसे कि कैसेरेट में कितने इंग्रेडिएंट्स होते हैं, दो इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे मिलते हैं। जैसे नॉन मैग्नेटिक इंग्रेडिएंट्स होता है और मैग्नेटिक। नॉन मैग्नेटिक इंग्रेडिएंट्स, व्हाट्स द नेम ऑफ दैट इंग्रेडिएंट्स, दैट इज अ स्टैनिन ऑक्साइड SnO2. Another is a magnetic ingredients, what's the name, that is a ferrous tungstate. Their molecular formula is FeWO4. remember, it's very important. तो देखिए बेटा, we have go to another technical process for obtaining the concentrate ore. So we have go to in our next slide. Here we will learn the next technical method for concentrate the ore, and that method name is a fourth flotation. Fourth flotation. Actually, this fourth flotation method, yes, it depends on one basic principle. Which basic principle here? That is, it is related to the property of substance. Some substance, they show the hydrophilic property and hydrophobic property, hydrophilic and hydrophobic प्रॉपर्टीज को लेकर। अभी देखिए, इस प्रॉपर्टी को लेकर हम यहाँ पे एक टेक्निकल प्रोसेस यहाँ पे कैरी ऑन करने वाले हैं, और इसी माध्यम को लेकर, इसी बेसिक प्रिंसिपल को लेकर हम यहाँ पे और को क्या करेंगे, कॉन्सेंट्रेट करेंगे, सहत बनाएंगे, सहत रूप से प्राप्त करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन को क्या करेंगे, लर्न करेंगे। तो यहाँ पे देखिए बेटा, यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर डायग्राम को रिप्रेजेंट कर दिया है। तो डायग्राम को थोड़ा देखिए यहाँ पे। तो डायग्राम में यहाँ पे हमें क्या मिलता है, जैसे देखिए बेटा, यहाँ पे स्पेशल कंस्ट्रक्टेड, यहाँ पे हमें टैंक दिखाई दे रहा है। देखिए बेटा, एक स्पेशल यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया वाला, जैसे देखिए बेटा, मैंने रेड लाइन को लेकर यहाँ पे टैंक बताया ना, जैसे टैंक स्पेशल कंस्ट्रक्टेड टैंक है, क्योंकि देखिए बेटा, बहुत बड़ा टैंक है। अभी इसी टैंक को, जैसे देखिए बेटा, उसी को लेकर उसी बाजू में हम यहाँ पे एक अलग सा एक कंटेनर की तरह से यहाँ पे टैंक दिखाई दे रहा है। जिस टैंक में हम क्या करते हैं बेटा, जो कॉन्सेंट्रेट ओर मिलता है इस मेथड से सेपरेट हुए वाला, वो हम इस टैंक में क्या करेंगे, उसे प्राप्त कर लेते हैं। तो इसी कारण इस टैंक को देखिए बेटा, यहाँ पे ये आउटलेट है ऊपर की तरफ से मिलने वाला। तो यहाँ पे जो कुछ और मिलते हैं इस कॉन्सेंट्रेट हुए वाले, तो हम इसमें कलेक्ट करेंगे। तो इसी कारण इसका नाम क्या है, दैट इज अ कॉन्सेंट्रेट लॉन्डर। जैसे इसमें हम क्या करते हैं, उसे कलेक्ट करते हैं, कलेक्टर, ठीक है। और देखिए बेटा, टैंक के बिल्कुल ही नीचे है ना, ये देखिए यहाँ पे रेड लाइट, जैसे रेड कलर से मैं यहाँ पे इंडिकेट करता हूँ। देखिए ये वाला नीचे दिखाई देता है ना, बिल्कुल ही नीचे एक हमें यहाँ पे एक पाइप दिखाई देता है, आउटलेट है, दूसरा आउटलेट है। तो इस आउटलेट से
जो कुछ गैंग्यूज होती है ना, पानी में वो डिजोल्व होती है, और डिजोल्व होने के बाद हम इसे, जैसे कि वो डिजोल्व होने के बाद जैसे बॉटम में लेयर की तरफ ऐसे जो परत जमती है, वो क्या होगा बेटा, हम उसे रिमूव कर पाएंगे। और रिमूव करने के लिए यहाँ पे जो आउटलेट होता है दैट इज ऑन आवर टाइलिंग्स, तो वो हम उसको धातु मणि के रूप से क्या करते हैं बेटा, रिमूव करते हैं, सेपरेट कर पाएंगे। ठीक है, अभी देखिए इसमें मैंने स्पेशल कंस्ट्रक्टेड क्यों बताया यहाँ पे टैंक को, क्योंकि यहाँ इस टैंक में एक देखिए एजिटर है, एजिटर, ये देखिए बेटा, ये एजिटर बोले तो ढवळनी। अब इस एजिटर को देखिए बेटा स्पेशली कंस्ट्रक्टेड है, क्योंकि देखिए इस एजिटर में हमें यहाँ पे पूरी पाइप की कंस्ट्रक्शन दिखाई देती है, ये पूरे पाइप की कंस्ट्रक्शन है। देखिए बेटा यहाँ पे वर्टिकली जो इंडिकेशन हो रहा है ना रेड लाइंस के द्वारा, यहाँ पे पाइप का एक कंस्ट्रक्शन यहाँ पे है, और यहाँ पे जैसे हॉरिजॉन्टली दूसरा पाइप यहाँ पे है। ठीक है, और उस पाइप को जैसे यहाँ पे छोटे छोटे पोर्स है, तो इस पाइप में से क्या होता है बेटा, हम कंटिन्यूस एयर को सप्लाई करते हैं। जैसे हॉरिजॉन्टली एक कनेक्टिंग पाइप यहाँ पे दिखाई देता है, कनेक्टिंग पाइप, कनेक्टर, तो इस कनेक्टर पाइप में हमें कंटिन्यूस एयर को क्या किया जाता है बेटा, सप्लाई किया जाता है। और एक्चुअली ये जो एजिटर है, एजिटर का काम क्या होता है बेटा, ढवळनी बोलते हैं उसको, घूमना होता है, वो घूमता रहता है ना, उसका वो फंक्शन करता है घूमने का। लेकिन घूमते समय जैसे एयर सप्लाई पाइप वहाँ पे स्पेशली कनेक्ट किया वाला है, तो एयर सप्लाई कंटिन्यू वहाँ पे उस पाइप में लगातार चलते रहेगा। तो उस पानी में जैसे घूमते समय पाइप तो एजिटर घूमेगा, तो घूमते समय वहाँ पे हाई प्रेशर एयर भी उसमें सप्लाई किया जाएगा। ठीक है, तो ये स्पेशली कंस्ट्रक्टेड है। तो एक्चुअली यहाँ पे उस कंटेनर में हमने क्या लिया बेटा, एम्पल अमाउंट ऑफ वाटर विथ सर्टन वेजिटेबल ऑयल्स, जैसे कि पाइन ऑयल है या सीडर, यानी कि जैसे कि यूकैलिप्टस ऑयल है, ऐसे ऑयल्स हम यहाँ पे लेते हैं, क्योंकि जैसे पानी में फोम बन पाए, फोम यानी कि फेस। ठीक है, तो इस तरह से ऐसे स्पेशली डिजाइन किया वाला या कंस्ट्रक्ट किया वाला ये यहाँ पे हमें एक मैकेनिज्म यहाँ पे दिखाई देता है। और इसमें हम क्या करते हैं, जो धातु से मिला वाला जो भरड़ होता है वो पानी में हम छोड़ देते हैं, और वो कंटिन्यू प्रोसेस लगातार कैरी ऑन करते हैं। तो इस प्रोसेस से ऊपर की तरफ जो फोर्थ होता है या फोम मिलता है, उसमें हमें कॉन्सेंट्रेटेड और प्राप्त होते हैं। तो देखिए बेटा, हम अभी इसको थ्योरी में लर्न करेंगे, ध्यान दीजिए। तो देखिए बेटा, तो यहाँ पे हमें पहले पॉइंट में क्या लर्न करने के लिए मिलता है, जैसे कि देखिए बेटा ए वाला पॉइंट, द फोर फ्लोटेशन मेथड इज बेस्ड ऑन टू अपोजिट प्रॉपर्टी, है ना बेटा। अभी यहाँ पे देखिए पहली प्रॉपर्टी यहाँ पे हाइड्रोफिलिक है, तो दूसरी प्रॉपर्टी हाइड्रोफोबिक है ना। तो हाइड्रोफिलिक जैसे कि वो वाटर के साथ क्या करते हैं बेटा, कंबाइन होते हैं या उससे रिस्पॉन्स करते हैं, और जैसे कि हाइड्रोफोबिक वो वाटर को जैसे लाइक नहीं करते हैं, है ना, वाटर से वो दूर भागते हैं। हाइड्रोफोबिक ऐसे पार्टिकल्स हमें यहाँ पे दिखाई देते हैं। अभी ये देखिए बेटा, दो एंटागोनिस्टिक प्रॉपर्टी है, विरोधाभासी। ठीक है, नेक्स्ट। तो देखिए बेटा यहाँ पे सेकेंड पॉइंट में हमें क्या लर्न करने के लिए मिलता है, जैसे कि देखिए बेटा ए वाला पॉइंट है, द पार्टिकल्स ऑफ मेटल। देखिए इसमें क्या होता है, कुछ ऐसे सल्फाइड्स होते हैं ड्यू टू देयर हाइड्रोफोबिक प्रॉपर्टी। जो सल्फाइड्स होते हैं इस ओर में, वो हाइड्रोफोबिक प्रॉपर्टी बताते हैं। यस, एंड गेट वेटेड मेनली विथ ऑयल, और वो वाटर में डिसॉल्व नहीं होते या पानी को कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं करते, क्योंकि वो पानी से दूर भागते हैं। और किस तरफ जाएंगे फिर, ऑयल की तरफ, क्योंकि वहां पे हमने देखी बेटा उस एम्पल अमाउंट ऑफ वाटर में सर्टन वेजिटेबल ऑयल को भी ऐड किया है ना। जैसे कि
वहाँ पे पाइन ऑयल है या यूकेलिप्टस ऑयल है, ऐसे ऑयल को ऐड किया है, तो उस ऑयल में क्या करते हैं बेटा, वो जो ओर्स में जो सल्फाइड्स होते हैं वो पूरी तरह से वाटर को रिस्पॉन्स न करते हुए किसके साथ रिस्पॉन्स करेंगे बेटा, विथ ऑयल। देखिए यहाँ पे ध्यान देना है, विथ ऑयल के साथ, मेनली विथ ऑयल, ठीक है। वाइल ड्यू टू द हाइड्रोफिलिक प्रॉपर्टी, अभी देखिए दूसरी प्रॉपर्टी, जैसे हाइड्रोफिलिक जो सब्सटेंस ओर्स में होते हैं, जो वाटर को लाइक करते हैं, वाटर के साथ उल्लव करते हैं, है ना, उसको रिस्पॉन्स करते हैं, जैसे कि गैंग्यूज, ठीक है बेटा। तो वो पूरे क्या होंगे बेटा, पानी में डिजोल्व होंगे, पानी के साथ वो रिस्पॉन्स करेंगे प्रॉपरली, सही तरीके से, क्योंकि वो हाइड्रोफिलिक प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए बेटा, ऐसे दो तरह से हमने सब्सटेंस को अलग अलग किया है, ये अलग अलग बेसिक प्रॉपर्टी को लेकर, ये यहाँ पे बेसिक है, इसी को लेकर ये हमें मैकेनिज्म या एक जो टेक्नोलॉजी है सेपरेशन मेथड की, हमें यहाँ पे लर्न करने के लिए मिलती है, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे थर्ड पॉइंट पे हमें क्या लर्न करने के लिए मिलता है बेटा, बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी सर्टेन ओर्स आर कॉन्सेंट्रेटेड बाय फॉर फ्लोटेशन मेथड, ऐसे कुछ सर्टेन ओर्स को, है ना, हम यहाँ पे सेपरेट कर पा सकते हैं इस मेथड को यूज करते हुए। तो नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखिए फोर्थ थ्योरेटिकल पॉइंट, इन दिस मेथड द फाइनली ground ore is put into the big tank containing the ample amount of water. Certain vegetable oil such as pine oil, eucalyptus oil is added in the water for the formation of the fourth यानी कि फोम फेज बोलते हैं, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट, चलिए बेटा नेक्स्ट थ्योरेटिकल पॉइंट, जैसे ये देखिए बेटा यहाँ पे प्रेशराइज्ड एयर जो एजिटर होता है ना, तो एजिटर यहाँ पे स्पेशल कंस्ट्रक्टेड है, उसमें कंटिन्यू देखिए बेटा एक हॉरिजेंटली एयर पाइप यहाँ पे कनेक्ट किया वाला है, तो उसमें क्या होता है बेटा, एक्चुअली यहाँ पे प्रेशर को कंटिन्यू कीप अप किया जाता है, रखा जाता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, देखिए बेटा प्रेशराइज्ड एयर इज ब्लोइंग थ्रू द वाटर, there is an agitator rotating around its axis in the center of the flotation tank। तो फ्लोटेशन टैंक में अक्सर वो हवा के दाब के साथ या प्रेशर के साथ वो घूमते रहता है, ठीक है। नेक्स्ट, तो एक्चुअली क्या होता है बेटा, द एजिटर इज यूज, अभी देखिए यहाँ पे ये सिक्स्थ पॉइंट, द एजिटर इज यूज एज अ पर रिक्वायरमेंट, बबल्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू ब्लोन एयर, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे बबल्स बनते हैं, ठीक है, सब फॉर्म होता है, और ये पूरी तरह से इस बबल में जो बबल्स बनते हैं, तो इस बबल में क्या होता है बेटा, जो कुछ ऐसे मेटल्स के हिस्से होते हैं वो पूरे पानी के जो फोर्थ में या फोम में इस ऊपर लाया जा सकता है उनमें, ठीक है। तो एक्चुअली इस तरह से हमें यहाँ पे लर्न करने के लिए मिलता है। देखिए बेटा अभी हम यहाँ पे 7 पॉइंट हम लर्न करेंगे अपने नेक्स्ट स्लाइड में। In this point we have learned here actually continue agitation process into the tank। देखिए बेटा टैंक में हमने बहुत सारे क्या लिया बेटा, जैसे कि एम्पल अमाउंट ऑफ वाटर विथ सर्टन वेजिटेबल ऑयल, जैसे कि पाइन ऑयल है या यूकेलिप्टस ऑयल है, इसके साथ और के मिक्सचर जैसे भरड़, उसको हम ऐड करते हुए एक प्रोसेस कैरी ऑन किया वाला है। जैसे एजिटेशन होता है, तो इस एजिटेशन में क्या हो रहा है बेटा, तो कंटिन्यू एजिटेशन जब होता है तो यहाँ पे वो फोम में हमें यहाँ पे परिवर्तित होते हुए, क्योंकि एजिटेशन होता है तो यहाँ पे जैसे जैसे बेस में से बबल्स बनते हैं, और बबल क्यों बन रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे वेजिटेबल्स ऑयल्स होते हैं। तो इस ओर का जो भरड़ होता है, उस भरड़ में से जो सल्फाइड्स होते हैं, क्योंकि सल्फाइड्स वो वाटर को रिस्पॉन्स न करते हुए, पानी जैसे पानी को रिस्पॉन्स न करते हुए वो ऑयल को क्या करते हैं बेटा, ऑयल के साथ एफिनिटी रिप्रेजेंट करते हैं, और ऑयल के साथ वो ट्रैप होते हुए, फोम में ट्रैप होते हुए ऊपर वहां पे फोर्थ के रूप में क्या होते हैं, सरफेस के ऊपर यहाँ पे हमें बने
हुए वाले दिखाई देते हैं। जैसे देखिए बेटा, इस डायग्राम में ये वाला जो मैं रेड लाइन को यहाँ पे इंडिकेट करता हूँ, जैसे देखिए बेटा ये वाला, ये जो दिखा है ना, दैट इज अ फोर्थ ईयर। तो यहाँ पे फोर्थ में कौन है, पूरे सल्फेट है, सल्फेट और के पूरे सल्फेट यहाँ पे हमें मिलते हैं। तो ये सल्फेट्स यहाँ पे हमें मिल रहे हैं, उसके ऊपर ऐसे तैरते हुए। तो सल्फेट दैट इज अ कॉन्सेंट्रेट ओर हम यहाँ पे ऐसे सेपरेट कर पाते हैं। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे केवल ये एजिटेशन के कारण ही होता है, क्योंकि एजिटेशन के कारण यहाँ पे फोम बनता है। और वो फोम क्यों बन रहा है, क्योंकि वहाँ पे वेजिटेबल्स ऑयल्स होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो बबल के साथ वो ट्रैप करते हुए ऊपर की तरफ यहाँ पे फोम, जैसे सल्फाइड्स को लेकर यहाँ पे फोम में वो ट्रैपिंग के रूप में कॉन्सेंट्रेटेड ओर हमें यहाँ पे मिलते हैं। तो देखिए बेटा, यहाँ पे हमें नेक्स्ट पॉइंट ऐसा मिलता है, जैसे कि देखिए ये जो पूरी प्रोसेस होती है, ये पूरी प्रोसेस, ये पूरा जो फिनोमिनन होता है, इसी को ही बोला जाता है दैट इज अ फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस। फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस, समझ में आ रहा है बेटा? तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट हियर। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, तो जो पार्टिकल्स होते हैं, किस पार्टिकल्स को लेकर, केवल सल्फाइड्स के पार्टिकल्स को लेकर, सल्फाइड्स के पार्टिकल्स को, क्योंकि सल्फाइड के पार्टिकल वाटर के साथ कुछ भी एफिनिटी न दर्शाते हुए वो वाटर को छोड़कर पानी के साथ क्या करते बेटा, एफिनिटी रिप्रेजेंट करते हैं, और फोम के रूप में, बबल में ट्रैप होते हुए फोम के रूप में उस पानी के ऊपर जैसे फोर्थ बनता है ना, फ्लोटेशंस के रूप में। तो इसी को लेकर हम यहाँ पे फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस ऐसे बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए बेटा, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो सल्फेट्स होते हैं, तो सल्फेट वाटर को रिस्पॉन्स न करते हुए वो क्या कर रहे हैं बेटा, प्रिफरेंसली रिस्पॉन्स टू इस ऑयल को रिस्पॉन्स करते हैं, वाटर को रिस्पॉन्स नहीं करते हैं, और वो फोर्थ जैसे फ्लोटेशन फॉर्म यहाँ पे बनता है ट्रैपिंग के रूप में। तो देखिए, ऐसी प्रोसेस को लेकर हम कौन से ओर को कंसंट्रेट कर पाते हैं। तो देखिए बेटा, यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में हम देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे दो ओर हमें मिलते हैं, जैसे जिंक ब्लेंड है, ये ओर है, इससे हम जिंक प्योर रूप में हम प्राप्त कर पाते हैं। इसके साथ कॉपर पायरेट है ना, ये ओर है ना। इस ओर को लेकर हम इसको प्रोसेस करते हुए कॉपर को प्योर मेटल के रूप में प्राप्त करते हैं। तो ऐसे ओर को प्यूरिफाई करने के लिए, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करने के लिए हमें ऐसे मेथड को हम इस मेथड को यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें सल्फाइड को क्या कर रहे हैं बेटा, सेपरेट कर रहे हैं फोर्थ फ्लोटेशन मेथड को यूज करते हुए। सल्फाइड जैसे देखिए बेटा, यहाँ पे जिंक ब्लेंड है, तो जिंक ब्लेंड में हमें यहाँ पे ये सल्फेट्स मिलते हैं, यहाँ पे सल्फेट्स है, ठीक है। एक्चुअली इसके बाद कॉपर पायरेट है, तो कॉपर पायरेट में देखिए बेटा, इसका फॉर्मूला CuFeS2 है। तो इसमें ये जो सल्फेट होते हैं, इसको हम अलग कर पाते हैं। तो इस तरह से कॉपर को हम यहाँ पे किसको अलग कर पाते हैं प्योर रूप में, जैसे कॉपर को सल्फेट्स जैसे हम यहाँ पे मिलते हैं, सल्फेट्स मिलते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से जिस ओर में सल्फेट होते हैं, ऐसे सल्फेट्स को अलग करने के लिए ये प्रोसेस बहुत ही यूजफुल होती है, क्योंकि फ्लोटेशन मेथड के द्वारा सल्फेट्स हम अलग कर पाते हैं इस मेथड को लेकर, ठीक है। आफ्टर देन वी गो टू द नेक्स्ट technical process for obtaining the concentrate ore. Here we have learned the next simple technical method, that is a leaching हम इसको सिंपल तरीके से बोल सकते हैं बेटा, धुवन है ना। जैसे देखिए बेटा, इस मेथड में क्या होता है, एक्चुअली इट्स अ वेरी simple technical method. This method is used for extracting the metal like aluminum, gold, silver. ऐसे जो नेचर में मिलने वाले इसके जो ओर्स होते हैं, एक्चुअली देखिए बेटा, जो सिल्वर, मैंने ये जो नाम बताया है ना, गोल्ड है, सिल्वर है, तो
एक ऐसे जैसे कि ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होते हैं, और जैसे वो नेचर में हमें मिलते हैं, तो सिंपल तरीके से जैसे हम लीचिंग प्रोसेस से सिंपली इसको क्या कर सकते हैं, इसके एक्सट्रैक्शन प्रोसेस को हम कैरी आउट कर सकते हैं। जैसे एल्यूमिनियम को भी हम यहाँ पे लेंगे। जैसे देखिए बेटा, तो इस मेथड में जो ओर होते हैं, पहले सबसे पहले उसको क्या किया जाता है, सोक इनटू द सर्टेन सॉल्यूशन, एक विशेष सॉल्यूशन में उसको भिगोया जाता है या डुबोकर रख दिया जाता है। सोक करना यानी कि भिजोने, है ना, भिजवत ठेवने। चलिए बेटा, तो कुछ समय तक या लंबे समय तक हमें उसको सोक करके रखते हैं। अभी द ओर्स डिसॉल्व इनटू द सॉल्यूशन ड्यू टू द स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन। ऑब्वियसली, तो जैसे हम डुबो के रखेंगे तो कुछ ना कुछ यहाँ पे केमिकल रिएक्शन जरूर होगी, ठीक है। लेकिन देखिए बेटा, जैसे इससे क्या होगा, रिएक्शन होती है, इसका मतलब जैसे कि इसमें कुछ गैंग्यू होती है, जैसे कि सिलिका है, सिलिकेट्स है या सॉइल है, जो अनवांटेड अननेसेसरी है, वो क्या होगी बेटा, वो पूरी तरह इसमें डिसॉल्व होते हैं। और जो जैसे कि कुछ ऐसे उसमें जो कंटेंट होते हैं वो उसके साथ डिसॉल्व नहीं होते या उसको रिस्पॉन्स नहीं करते हैं, ठीक है। एंड दे डज नॉट रिएक्ट विद द वाटर, जैसे कि दे डज नॉट डिसॉल्व इनटू द वाटर, है ना। अभी ऐसे जो कंटेंट होते हैं उसको हम अलग से सेपरेट कर पाते हैं गैंग्यू को रिमूव करने के बाद। गैंग्यू हम इजी तरीके से, जैसे लीचिंग प्रोसेस को लेकर, लीचिंग मेथड को लेकर गैंग्यू हम सेपरेट करेंगे। गैंग्यू, है ना, अननेसेसरी, अनवांटेड। तो देखिए बेटा, यहाँ पे डायग्राम में बताने का प्रयास किया है। जैसे यहाँ पे ऐसे कुछ मेटल्स होते हैं, तो यहाँ पे जैसे एक टैंक बनवा है एक स्पेशल तरीके से, उस टैंक में हम क्या करते हैं बेटा, अलग अलग जो सॉल्यूशंस होते हैं, जैसे कुछ कुछ ओर्स होते हैं हम पानी में भिगोएंगे, है ना, कुछ ओर्स होते हैं सल्फ्यूरिक एसिड में, उसको हम भिगो के रखेंगे। कुछ ओर्स अलग अलग ऐसे केमिकल्स में, जो केमिकल के सॉल्यूशन होते हैं उसमें हमें क्या करना है बेटा, जैसे उसको छोड़ देना है, ठीक है, यानी कि हमें उसको भिगो देना है। भिजवत ठेवणे असं म्हणायचं त्याला, म्हणजे असं आपण काही त्याला भिजवत ठेवू काही वेळापुरते किंवा जास्त वेळापर्यंत, ठीक है बेटा। आगे इससे क्या होगा, जो इम्प्योरिटी होती है गैंग्यू होगी, सेपरेट होगी। जो थ्योरी में दिया है वही है यहाँ, ठीक है। तो देखते हैं, तो गैंग्यू यहाँ पे सेपरेट होती है। तो एग्जाम्पल यहाँ पे लर्न करेंगे बेटा। तो एक्चुअली देखिए, यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में हमें लर्न करने के लिए मिलता है कॉन्सेंट्रेटेड बॉक्साइट। बॉक्साइट ये ओर है, इस बॉक्साइट से हम एल्यूमिनियम प्योर रूप में प्राप्त कर लेते हैं। देखिए एल्यूमिनियम का ओर कौन है यहाँ पे, बॉक्साइट, ठीक है। इस मेथड से हम इसको एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं। इसके बाद देखिए बेटा, ये जो बॉक्साइट होता है ना, तो बॉक्साइट को हमें किस में भिगो के रखना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में। सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में ध्यान रखना है बेटा, बॉक्साइट को हमें किस में भिगो के रखना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में। और एक्वस Na2CO3 दैट इज सोडियम कार्बोनेट के सॉल्यूशन में, ठीक है। क्योंकि उसमें कुछ ऐसे जो गैंग्यूज होती है उसमें डिसॉल्वेबल होती है, कुछ यहाँ पे नॉन डिसॉल्वेबल होती है। और इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं बेटा, कॉन्सेंट्रेटेड ओर सबसे पहले हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं या ऑब्टेन कर पाते हैं। समझ में आ रहा है बेटा। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल के रूप में हमें कौन दिया है, यहाँ पे कौन दिया है, बॉक्साइट दिया है। बॉक्साइट इज अ ओर ऑफ एल्यूमिनियम, बॉक्साइट इज अ ओर ऑफ एल्यूमिनियम। तो इस बॉक्साइट से हम कॉन्सेंट्रेटेड ओर को सेपरेट कर पाएंगे, लेकिन ये करने के लिए हमें इसको, ये बॉक्साइट को किस में भिगो के रखना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में या एक्वस सोडियम कार्बोनेट के सॉल्यूशन में, ठीक है बेटा। तो इसी तरह से हम इसको क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो देखिए, जैसे हम बॉक्साइट के इस सॉल्यूशन में उसको भिगो के रखेंगे तो क्या होगा, यस, तो यहाँ पे हमें
इंग्रेडिएंट्स के रूप में यहाँ पे एल्यूमिना मिलता है, एल्यूमिना मिलता है। तो एल्यूमिना ये सबसे जैसे फाइनल प्रोडक्ट मिल रहा है, तो इसके ऊपर प्रोसेस करके हम प्योर एल्यूमिनियम क्या कर सकते हैं बेटा, प्राप्त कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस सिंपली प्रोसेस है, दैट इज अ धुवन। लेकिन ये करने के लिए जैसे हम धुवन बोलते तो सबसे पहले हमें वाटर ही ध्यान में आता है, लेकिन यहाँ पे वाटर ही नहीं यूज करना है हमें, जैसे ओर के मुताबिक हमें अलग अलग केमिकल के सॉल्यूशन यहाँ पे यूज करना है। ठीक है, तो ये सिंपली मेथड है, दैट इज अ लीचिंग मेथड। देखिए बेटा, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे ओर को कॉन्सेंट्रेट किया है, सहज रूप से हमने ओर को एक्यूपाई किया है। ठीक है, कोई डाउट हो तो पूछना है। तो यहाँ पे हम रुकते हैं। थैंक यू।